معزز خواتین و حضرات، کراچی لٹریچر فیسٹیول کے آج کے اس خصوصی سیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج یہ خصوصی نشست ملک کی مشہور و معروف ادیبہ، شاعرہ، ایکٹیوسٹ کشور ناہید کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ کشور ناہید کا نام ہمارے ملک میں، ہمارے ادب میں جرأت اظہار کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور چھوٹا منہ بڑی بات میں اگر ان کے ادبی کارنامے گنوانے بیٹھوں تو مجھے لگے گا کہ یہ شاید 1 گھنٹے کا سیشن تو اسی میں ختم ہو جائے گا۔ تو آپ سب لوگ جو یہاں آج ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ضرور ان کے نام اور ان کے مقام سے واقف ہیں، اس لیے میں رسمی تعارف کے بجائے صرف بعض ایسی باتوں پر آج کا وقت استعمال کرنا چاہوں گا جی بالکل، جو خاص کشور آپا کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے ہمیں کچھ خاص پہلو اجاگر ہو سکے۔ میرا نام انعام ندیم ہے، اور آج میرے ساتھ میزبانی کے فرائض یہاں انجام دیں گی بی گل صاحبہ۔ تو آپ بھی اپنا تعارف کروا دیں، کچھ 2 لفظ بولیے۔ جی آداب، میری بہت خوش قسمتی ہے کہ مجھے دعوت دی گئی اس سیشن کے لیے، کیونکہ میرے لیے تو کشور آپا ایک موومنٹ، ایک تحریک ہیں، اور آج ہم ان سے کچھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اور انعام نے یہی سوچا کہ کچھ اور باتیں جو ہم شاید ان سے سننا چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں، کوشش یہ رہے گی کہ اس طرح کی گفتگو آج یہاں ہو۔ تو یہ تو طے ہے کہ ہم کشور آپا سے ان کی نئی نظمیں بھی سنیں گے اور ہم غزلوں کی بھی فرمائش ان سے کریں گے، لیکن اس بات پر بھی خاص زور رہے گا کہ ہم کچھ غیر رسمی سوالات بھی آج کشور آپا سے کریں اور ان سے کچھ اس حوالے سے بھی گفتگو کر سکیں۔ تو کشور آپا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو عمر کی ایک خاص منزل پر پہنچ کر بھی اتنی توانائی کے ساتھ لکھتے ہیں یا اس تواتر کے ساتھ لکھتے ہیں جس تواتر اور توانائی کے ساتھ انہوں نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں لکھا ہو، تو آپ ان میں سے ایک ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کالم بھی تواتر کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کی نئی نظمیں میں آج صبح پڑھ رہا تھا جو بالکل حالات حاضرہ پر ہیں۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو قلم ایک طرف ڈال کر آرام کرنے نہیں دیتی اور ہمہ وقت اکسائے رکھتی ہے اور تحریک دیتی رہتی ہے لکھنے کی؟ اصل میں تمہارا خیال ہے کہ عورت اور مرد بھی 60 سال کا ہوا تو جھک کے چلے اور 80 سال کا ہوا تو بستر پہ پڑ جائے۔ یہ کیوں تم نے سوچ لیا کہ چلو بھائی تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ ایک خاتون جو دفتر بھی جاتی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے، گاؤں میں جا کے عورتوں سے بھی بات کرتی ہے، شہروں میں رہ کے بھی اسکولوں میں جاتی ہے، کرتی ہے، آنکھ کان سب کھلے ہوئے ہیں اس لحاظ سے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نہ دیکھو، دنیا کے ٹیلی ویژن تو دیکھو، پتہ چلے کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو اس لیے وہ سب کچھ جو سنتی جاتی ہوں، پڑھتی جاتی ہوں، اسے نوٹ بھی کرتی جاتی ہوں، لکھتی بھی جاتی ہوں، اور پھر اس لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ سب نہ کر رہی ہوتی تو میں اپنی ماں کی طرح اور اپنی خالاؤں کی طرح اور اپنی بڑی بیویوں کی طرح ڈیمنشیا کا شکار ہو کے بستر پہ پڑی ہوتی اور پوچھ رہی ہوتی، ہائے کوئی ہے، ہائے کوئی ہے۔ یہ منزل میں کسی کی زندگی میں نہیں آنے دینا چاہتی۔ جتنی عورتیں میری عمر کی ہیں اور جو میرے سے بہت چھوٹی ہیں، ان کو صرف ایک بات کہوں گی، پڑھو لکھو کام کرو، لوگوں کے کام آؤ، اور پھر یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا بھی جو فقیر ہے یا جو روزانہ کا پیسے کمانے آیا ہے، کبھی کبھی اس کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو، پتہ چلے گا کہ اس کے گھر کی روٹی کیسے چلتی ہے اور میرے گھر کی روٹی کیسے چلتی ہے۔ اور اب تو بہت ہی سوچنا پڑے گا کیونکہ IMF آ گیا اور کل پرسوں سے 250 روپے اور بڑھ گئے تیل کے، تو اب میں نے تو کہا تھا ساری دوستوں سے کہ اب سائیکل لے لیتے، تو سنا سائیکل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، سائیکل بھی نہیں لے سکتے۔ تو یہ سارے مسائل ہماری زندگی میں ہیں، میری زندگی میں تو ہیں، کہ آپ کی میں نہیں ہے، کہ آپ کی میں نہیں ہے، کہ آپ میں نہیں ہے، تو پھر
नई कौन सी बात है, मैं तो पुरानी बातें ही कर रही हूँ। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन खुदा न खास्ता मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि ख़वातीन क्यों इस तरह से एनर्जेटिक होकर लिख रही हैं। मेरा सवाल ये था कि एक ज़िंदगी के ख़ास मरहले पर आपको ये एहसास होता है कि आपने काफ़ी काम किया है और शायद आप अपना बेस्ट दे चुके हैं। सो आपके यहाँ जो मुझे एक बेकरारी नज़र आती है और जो एक उकसाहट है जो हमा वक्त आप आपके कॉलम्स में, आपकी नज़मों में, आपकी गज़लों में भी, मेरे लिए एक आपके एक मद्दाह और आपके एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि मैंने आपके काम का बिलिस्तियाब मुतालिया किया है। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो शायद ये दावा कर सकें कि किश्वर आपा की सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जो तवानाई आपके आगाज़ में हमें दिखाई देती है वो आज के काम में भी उतनी ही रवां दवां है। ये काम ये चीज़ हमें थोड़ी हैरान करती है और शायद एक तरह से हमें भी ये सबक दे रही है कि देखिए बड़े अदीब को ऐसा होना चाहिए। मैं फिर से इस सवाल की तरफ आऊँगा कि ये असल में आपको ऐसा लगता है कि हालात ही नहीं बदल रहे इसलिए मैं उन पर लिखना ही नहीं छोड़ सकती और मौज़ूआत को बदल नहीं सकती, या चूँकि आपकी सांस में शामिल है, खून में शामिल है लिखना, तो यही आप समझती हैं कि मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता? बीगुल, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में? किश्वर आपा का एक शेर है कि हमें देखो, हमारे पास बैठो, हमसे कुछ सीखो, हम ही ने प्यार मांगा था, हम ही ने दाग पाए हैं। तो मैं तो आपकी इस बात से ज़रा सा इनाम आपकी इजाज़त से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बाहर निकलते हैं, हम औरतें, हम काम करते हैं, हम घर संभालते हैं, हम बच्चे पालते हैं, हम हर जगह, और हमारी नज़र है, हमारा एक वर्ल्ड व्यू है, हमारा एक पॉलिटिकल व्यू है, हम एक बराबरी की सतह पर यहाँ बात करते हैं। तो किश्वर आपा और यहाँ इस वक्त मौजूद हैं बहुत सी ऐसी रोल मॉडल्स, पहली ही नशस्त में तशरीफ़ रखती हैं। ये सब हमारे लिए वो रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए और जिस पर हम गुनाहगार औरतें जो हैं वो चलीं, जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। अब मसला ये है किश्वर आपा कि आज की औरत की अगर हम बात करते हैं, आपने हमें सिखाया घरों से निकलो, तालीम हासिल करो, काम करो, बराबरी करो। तो जो एक बहुत मसला दरपेश है आज की औरत को जो बाहर निकल कर काम करती है, वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। उसको ज़ाहिर है दबाया जाता है, उसको डिस्करेज किया जाता है कि वो घरों को लौट जाएं, अपनी चार दीवारियों को। उनके ख़िलाफ़ बहुत सी मुक़दमात बनाए जाते हैं, उनकी बहुत किरदार शिकनी की जाती है बहुत आराम से, क्योंकि जो घर से निकलती हुई औरत है वो गुनाहगार है बहरहाल। तो क्या करे आज की औरत जो आप ही के कहने पे पीछे पीछे चलती हुई आई है? आपने भी इन सब चीज़ों का सामना किया होगा। जब बाहर की औरत के बारे में आप पढ़ते हैं, मैंने देखा, इसलिए कह रही हूँ, जब उसको आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता है तो वो खाना नहीं खाती, उसके हाथ में, एक हाथ में सैंडविच होती है, दूसरे हाथ में कॉफ़ी का कप, और दोनों हाथों के बावजूद वो गाड़ी चलाती हुई ग्रोसरी करने जाती है। ग्रोसरी से वापस आती है तो उसके बाद फिर काम करती है, और जब अपने दफ्तर से फारिग होती है तो दफ्तर से उठ के बस पे जाना, बस से उठ के ट्रेन पे जाना, ट्रेन से उठ के फिर बस पे जाना, और फिर घर पैदल चल के जाना। और जब वो घर पहुंचती है तो वो कहती है कि मुझे ये जहन पे होता है कि मैंने क्या क्या पकाना है, क्या करना है घर का काम। और जब शौहर आते हैं वो आके घर पे लेट के एक बियर का ग्लास लेके, और जब वो आ गई, हेलो हनी, हाउ आर यू। हमारे यहाँ कुछ कम नहीं है, हमारे यहाँ भी यही है। आपको ज़्यादा खांसी आ रही है मुझसे ज़्यादा, तो ज़रा बाहर हो जाइए। शुक्रिया। तो हमारे यहाँ भी तो यही है कि हमारे यहाँ अगर मर्द काम करने भी लगता है तो हम कहते हैं आप, बुरा लगता है, लोग बुरा मनाएंगे, आप घर के बर्तन मत धोएं, मैं खुद ही धो लूँगी। कपड़ों की इस्त्री करने को आप कपड़े इस्त्री ना करें। हमने छुई मुई बना के तो शौहरों को रखा होता है, तो जब वो छुई मुई बन के होते हैं
तो फिर वो जो जैसा बिहेव करेंगे वैसा बिहेव करेंगे, उनको बिहेव करने दो। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चे के नैपी तुम बदल दो, बच्चे को कपड़े मैं पहना देती हूँ, आपके कपड़े इसलिए कर दे, तब तक बात माशरा बनेगा नहीं। आप ज़बरदस्ती ये ना कहें कि हम आपके पीछे चल पड़े। भाई मैं कोई रज़िया सुल्ताना हूँ जो मुकदमा लड़ रही हूँ और घोड़े पे जा रही हूँ? हम तो वो सब औरतें हैं, आप सब मर्द और औरतें वो हैं जो काम करती हैं। काम करने का मतलब सिर्फ दफ्तर नहीं है। और फिर हम तो बहुत खुश नसीब हैं, हमें इजी लेबर मिल जाती है, औरतें मिल जाती हैं। बच्चे 5 साल के बच्चे को हमारी माएँ जो गांव में होती हैं वो नौकरी करने पे लगा देती हैं, और उसने 2 साल के बेटे को गोद में उठाया होता है क्योंकि उनके यहाँ से उसने 250 रुपये कमाने होते हैं। उस 250 रुपये से उसके घर की मिर्चें वो आती हैं जो सिल पे पीसती है और उठाती नहीं है, क्योंकि मिर्चें उठाएंगी तो आधी रह जाएंगी। सिल पे ही रोटी लगा के वो बच्चे और वो खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं। तो मैं उन ख़ानदानों में रहती हूँ। मैं आसमान पे नहीं रहती, मैं उनके दरमियान रहती हूँ, और आप सब उनके दरमियान रहते हैं। वरना क्यों हो रहा होता कि परसों से हम शोर मचा रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आज उन्होंने कहा मसूर की दाल भी 450 रुपये हो गई है। ये मेरा आपका सबका मसला है। और लफ्ज़ जो हैं झूठ नहीं बोलते, मैं तुम्हें झूठ बोल सकते हैं। लफ्ज़ अगर सच्ची तरह लिखे हों तो झूठ नहीं बोलते। और उन लफ्ज़ों की पाकीज़गी को कायम रखने के लिए आपके पास एक टूल है, और वो टूल है लिखते रहना। और दूसरा टूल भी है, वो ये है पढ़ते रहना, समझते रहना क्या क्या हो रहा है। मसलन मैं तुम्हें बताऊं, एक मैं साउथ अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन एक शायरा थी, उसका कलाम पढ़ रही थी, और उसकी नज़्म में 2 मिसरे थे। उसने कहा कि माँ से बेटी कहती है, अम्मा ये चिड़ियाँ नंगे पाँव क्यों चढ़ती हैं? अब ये मिसरा कहना कि अम्मा ये चिड़ियाँ नंगे पाँव क्यों चलती हैं, हमारे यहाँ तो नंगे पाँव, आधी कौम तो नंगे पाँव है। हमने तो कभी नहीं लिखा उन नंगे पाँवों पे, तो हमें लिखना चाहिए ना। ये हमारे लिए ये नूर हुदा इसलिए तो बैठी है कि इसने उन नंगे पाँवों के ऊपर लिखा है। और मैं वो हूँ जिससे नंगे पाँव 5 साल की उम्र में 47 में उन लड़कियों के देखे हैं जो अलीगढ़ पढ़ती थीं, अगवा की गई और बाजियाब की गई। और मुझे सिर्फ़ वो याद है कि मैंने सिर्फ़ अम्मा की टांगों के दरमियान से उस औरत के, लड़की के पाँव देखे थे जिसमें मट्टी और गारा इकट्ठे हुए हुए थे, खून भी लगा हुआ था। वो पैर मुझे आज तक नहीं भूलते। और मेरे गांव की औरत, कोल माइन में काम करने वाले मर्द, रोज़ाना कोडू की जो औरतें हैं सर पे कोड़ी उठा के ईंटें ढो रही होती हैं, वो इतना उन्होंने जेवर पहना होता है। और मैंने ये भी देखा कि जब मैं या तुम फ़ोटो लेने के लिए उनके पास जाते हो तो उनका शौहर फ़ौरन कहता है तस्वीर नहीं ले सकते, एक काम कर दी भाई, ये ताटियाँ औरतें हैं, ये नहीं होना थी, तस्वीरें ले लो। ये हमें जवाब मिलता है। मैं इस किस्म के सारे जवाब सुन चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ, और तवक्को करती हूँ कि तुम लोग भी आगे बढ़ के सवाल करोगे। 2 बहुत अहम नुक्ते हैं जो अभी इन्होंने बात कही। एक ये कि मुझे जो बहुत अच्छी लगी बात कि हम इक्वालिटी या बराबरी की जब औरत और मर्द की बात करते हैं तो किशोर आपने सही कहा कि जो ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हैं वो बांटी है। मुझे नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही? हाँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो ये बहुत अच्छी बात कही कि जो बराबरी औरत और मर्द की है वो तो घर से शुरू होती है कि आपकी ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियां हैं वो बराबर से बांटी जाएँ, तकसीम की जाएँ। और दूसरी बात ये कि जो भी एक आर्टिस्ट है और वो लिखने वाला अगर आर्टिस्ट है, उसके पास कलम है, तो उसका एक पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए, उसका एक सियासी नज़रिया होना चाहिए, और जो हालात उसके इर्द गिर्द हैं अगर उस पर नहीं लिखेगा तो फिर क्या लिखेगा? तो कुछ आप कहना चाह रहे हैं? किशोर आपा, मैं अभी आप जो फरमा रही थी, मैं चाहता हूं कि हम इस मकालमे को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आपने कहा कि हमारी तो आधी कौम के बच्चों के पैर में जूती नहीं है, वो नंगे पाँव हैं। और आपने कहा कि मैंने उन नंगे पाँव को लिखा। आपने नूर हुदा शाह का भी हवाला दिया, उन्होंने लिखा। हम देखते हैं 50 बरस से आप लिख रही हैं। आप मुझे बताइए कि आपने देखा कि अब उन पैरों की गिनती में फ़र्क आया है? पहले ज़्यादा नंगे पाँव थे, अब वो नंगे पाँव कुछ कम हुए हैं? आप लोगों के लिखने के बाद आपने जो लिखा उसने कितना बदला हमारी सोसाइटी को? उसने क्या वो बदलाव क्या है?
वो शऊर कितना आ सका है, कितने फीसद आ सका है? तुम टेलीविज़न का इंटरव्यू नहीं कर रहे, तुम यहाँ पे लोगों के सामने बात कर रहे हो। ये टेलीविज़न के इंटरव्यू का सवाल है। जितने पैर नंगे कम हुए हैं उससे दुगने पैर बढ़ गए हैं, जी। क्योंकि हमने सैलाब के ज़माने में भी 70,000 औरतों के हमल थे जिसकी के लोग और दूसरी औरतों ने मदद की है। हमने हर ज़माने में देखा कि मैं सन 62 से देख रही हूँ कि मुझे कह रहे हैं सब लोग कि फैमिली प्लानिंग आ गई, फैमिली प्लानिंग आ गई। भाई उस फैमिली प्लानिंग का क्या करना है कि जब मैं अगर गांव में जाकर या अंदरून शहर लाहौर में इस पे मदिया गौर को कह के ड्रामा स्ट्रीट थिएटर करती हूँ, तो वहाँ जो बुढ़ी माई बैठी है वो मुझे कहती है, पुत्र जी वक्त ज़ाया ना करो, ये साढ़े मर्दां नूं समझाओ कि रोज़ रोज़ बच्चे नहीं पैदा करने, इन्हें कुड़ियां ना की है, ये तो बेचारियाँ मजबूर ने। तो ये वाली बात ज़रा कम हुई है कि जी मजबूर ने। लेकिन एक बात जो मुझे माफ़ कर दीजिएगा कहने के ऊपर, कि आज भी शहर की औरत भी और फैशनेबल औरत भी और गांव की औरत भी अगर किसी वक्त शौहर को कह देती है मैं थकी हुई हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी अंदर जान नहीं है, तो उसका जवाब, कॉमन जवाब मैं आपको बताऊँ, माफ़ कीजिएगा, वो कहता है फिर किधर नाल तेरा जी कर रहा है। ऐसा फ़िक्रा सुनने के लिए औरतें तैयार नहीं होती, फिर कहती हैं मजबूरन हमें वो जो शादीशुदा ब्याहता के लिए कहा जाता है कि वो रेप होती हैं, इस फ़िक्रे के लिए कहा जाता है कि उसको ये सुनना पड़ता है कि अगर मैं मना करूँगी तो मुझे ये फ़िक्रा सुनना पड़ेगा। तो इसलिए आप ज़िंदगी को टेलीविज़न की नज़र से या अखबार की नज़र से मत देखिए, ज़िंदगी को अब देखिए वो जो हम गुजारते हैं। यहाँ बहुत हज़ारों बच्चे आए हैं, हज़ारों बच्चों ने तस्वीरें मेरी, तुम्हारी, नूर की, इस सब की उतारी हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ बेटा मुझे जानते हो, नहीं, फिर तस्वीर क्यों उतार रहे हो? आप आई हैं ना, आप यहाँ बोल रही हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ तस्वीर उतार के फिर मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि मैंने इनके साथ तस्वीर उतारी। और उस पर मुझे याद आ जाता है कि जब ये टिकटॉक से लेके सब चीज़ें होती हैं और लड़के लड़की की रात के 2 बजे गुफ्तगू हो रही होती है, तो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें अपना बदन दिखाता हूँ, पहले तुम अपना बदन दिखाओ। और ये कैफियत जो है तुमने भी देखी है और मैंने भी देखी और सुनी भी है, और मुझे कहते हुए भी हिजाब आ रहा है, क्योंकि नज़्म मैंने इस पे लिखी, लेकिन यकीन करें अक्सर दफ़ा नज़्म लिखते हुए कलम रुक जाता है और जिस्म ठंडा हो जाता है कि ये जज्बे हम कब कहूँगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वेस्ट की औरत जो है तो उसको मार निकालनी पड़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट में लोग जो हैं बहुत शरीफ हो गए, कहते एक्सक्यूज़ मी, सब कुछ वहाँ भी सभी कुछ होता है, लेकिन हम उनसे कुछ आला दर्जे पे पहुँच गए हैं। हम औरत को मारना ऐन मर्दानगी समझते हैं, हम औरत को तकज़ीब करना ऐन मर्दानगी समझते रहे हैं। अब तो ये हुआ कि मेरे पास असगर नदीम सैयद भी है, अनूर हुदा शाह भी है और सब लोग हैं। ये इन्होंने लिख के बहुत से लोगों की आंखों में शायद शर्म दे दी है, या शायद उनको ये एहसास दिला दिया है कि तुम पढ़े लिखे हो, वरना पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई तमीज़ नहीं रही थी। आज भी आप देखें पढ़ी लिखी लड़कियों को गैरत के नाम पे कत्ल किए जाने की क्या एवरेज है और किस तरह हो रहा है। अभी तो एक लड़की जो जर्मनी से आई थी, 6 महीने से ब्याही हुई थी, वो और उसका मियाँ दोनों आए और उसके बाद उसको कत्ल माँ बाप ने कर दिया कि इसने हमारी इजाज़त के बगैर शादी कर ली थी और चली गई थी बाहर। तो मैं क्या क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को रुलाना नहीं चाहती, मैं आप खुद को नहीं, मैं थोड़े सा रियलिस्टिक होना चाहती हूँ कि जैसे मैं अगर शायरी में रियलिस्टिक होकर कभी कुछ कहती हूँ या कोई और कहता है, तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि हमारे मुल्क की लड़की जो पढ़ लिख जाती है उसको ये अभी तक नहीं ख्याल आया कि 1 लाख रुपए सिर्फ एक रात की ब्यूटी पार्लर में देने के बाद घर में रोटी है कि नहीं, इसका कोई ख्याल नहीं करता। वो कहती है ज़िंदगी में एक ही रात तो होती है जिसमें सजना होता है, उसके ऊपर क्या खर्चा आता है और क्यों होता है। मेंटली हम अगर आप लोगों को अलर्ट नहीं करेंगे और तैयार नहीं करेंगे। अभी मुझे कोई बता रहा था कि एक शादी से आ रहे थे वापस, एक लड़की औरत ने
चूड़ियाँ पहनी हुई थी, सोने की लग रही थी। जब डाकुओं ने उसका हाथ पकड़ा तो उतारी चूड़ियाँ तो वो हंस के कहती है नकली थी। वो इतने गुस्से में आए कि उन्होंने उसके शौहर को गोली मार दी। ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी में हैं, लेकिन हम जेवर बनाना कम नहीं करते। जर्मनी में जिस वक्त हुआ था, 2 हिस्से हुए थे, उस वक्त ये हाल हुआ था कि लोगों ने कहा अगर आज प्याज महंगी है तो हमने प्याज नहीं ख़रीदनी, अगर आलू महंगे हैं तो हमने आलू नहीं ख़रीदने। कौमी सतह के ऊपर ये फैसले हुए थे। औरतों ने बंद कर दिया था लेना, और मर्दों ने भी कहा था अच्छा चलो ठीक है। और हमारे यहाँ पूछते ही नहीं हम, प्याज की बात देती है, आलू क्या भाव है, करेले हैं कि नहीं। आजकल मुझे करेले पकाने को कहा है। तो हमें ये सब चीज़ों को सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो IMF का आया है पैगाम वो आपको सुना दूँ। IMF का तोहफा, मैंने उससे कुछ खाने को मांगा, उसने भूख प्लेट पर ला कर रख दी। क्या सूखी रोटी भी नहीं है कि मैं पानी लगाकर नरम कर लूं? मगर पानी कहाँ है? सरकार के लगाए सारे फ़िल्टर खुश्क हो चुके हैं। बग़ैर दूध के चाय दे दो। भाई बताया ना, पानी नहीं है। दुकान में दूध तो होगा, वो भी नहीं। भैंसों को सिर्फ बुदावा दिया जाता है, उनके थनों में भी दूध नहीं रहा है। अच्छा मुझे आटे की भूसी ला दो। आटा होगा तो भूसी होगी। बच्चे रो रहे हैं, उनको बिस्किट दे दो। बहुत टैक्स लग गए हैं, बिस्किट नहीं है, बहुत महंगे हो गए हैं। मैं सरकार से शिकायत करूं। क्या कहा सरकार? वो कहाँ है? चलो फिर हम इज्तिमाई खुदकुशी करते हैं, मगर कब्र के लिए भी तो ज़मीन चाहिए। सो गए। अच्छा फिर मैं एक और, इससे भी ये मुश्किल थी समझना, मतलब ये कि बर्दाश्त करना। एक है मैं और मेरी दादी। मेरी बूढ़ी दादी पलंग पे पानदान खोले छालिया कतरती चीख रही है, बार बार कह रही है किसने मेरे बेटियों को हक मारा, किसने मेरी बेटियों का हक मारा, जायदाद पे कब्ज़ा किया, मुझे खटिया पे डाल के सब चले गए, मेरा पलंग झोला हो गया है, मेरे पानदान में कत्था ख़त्म हो गया है, खाली चूना खाते खाते मेरे होंठ फट गए हैं। दादी जी को उसने देने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी झुकी कमर के साथ पायती नहीं कर सकती। मैं भी आप जैसी हो गई हूँ। मैं अपनी पेंशन लेने जा रही हूँ और आपके लिए कत्था लेके आऊँगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो ये है। अब आप पाकिस्तान से ज़रा आप इधर निकलें तो आपको पता क्या लगेगा कि आप ईरान में आज तक 28 बंदों को फांसी दी जा चुकी है। इसलिए 82 बंदों को फांसी दी जा चुकी है क्योंकि वो औरत जो महिसी अमीनी थी उसकी मदद के लिए जुलूस निकाल रहे थे। यूरोप में भी जुलूस निकले, वहाँ किसी को फांसी नहीं दी गई, लेकिन यहाँ 82 लोगों को फांसी दी जा चुकी है और 722 लोग जो हैं वो अभी तक जेल में हैं, जिसमें जाफ़र पनाही अकेला है जो फिल्में बनाता है कि उसको रिहाई दी है, फांसी की सज़ा देने के बावजूद उसको सज़ा दी है। तो मैं महिसा इमानी अमीनी की जो उन्होंने उसको मारा है, 2 इस तरह मारा कि वो मर गई, उसी के ऊपर मैं एक नज़्म आपको सुना देती हूँ। जिस वक्त ज़नाने मिस्र यूसुफ का दीदार करते हुए अपनी उंगलियां काट रही थीं, उन्हें किसी मज़हब ने जंजीर नहीं पहनाई थी। हाफिज़ और सादी की ज़मीन के पासदार जवान बच्ची को तंबीह करते हुए जान से मार डालने को ऐन इस्लाम समझते हैं। फ़र्रुख़ज़ाद के मुल्क में औरतें स्कार्फ़ और दुपट्टे जला रही हैं, एहतजाज में बाल काट रही हैं। शख्सी आज़ादी के लिए सारी दुनिया की औरतें और मर्द नाराज़न हैं। अहमद शामलू और जाफ़र पनाही कह रहे हैं जन ज़िंदगी और आज़ादी। ये नारा है औरतों का, जन ज़िंदगी आज़ादी। मज़हब के मुर्ग़ज़ात को वीराना बनाने वालों का बस चले तो दरख्तों को भी हिजाब पहना दें। ये तो लहकती शाखें देखकर होंठों पे ज़ुबान फेरने लगते हैं।
عقیدوں کی غلام گردشوں میں عورت کو مقید کرنے والوں اور دنیا کے تمام امام و شیوخ کو یاد دلاؤں، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے ماں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ اس دن ناصحین کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی کہ اس بھی وہ عورتوں کو حجاب پہنانے کے لیے بھاگے بھاگے پھریں گے۔ واہ واہ، واہ، اچھا ہاں، مجھے تو بھائی بڑا یہ بتائیں کہ یہ سوال۔ عورت مارچ کیا بلا ہے؟ اور مارچ ہاں بہت ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا حق مانگیں، ذرا پیار سے مانگیں، ذرا دھیمے لہجے میں مانگیں، یہ بھی وہ طے کریں گے کہ کیسے مانگیں۔ عورت مارچ کو تو دنیا میں سبھی مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں تم کراچی میں، اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے، ادھر عورتیں کھڑی ہیں جس میں بچیاں زیادہ ہیں، اور ادھر برقعے میں کھڑے ہوئے مرد، یہ بتانے کے لیے کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں یہ بھی، انہیں کچھ نہ کہو۔ تو ہم نے ایک دو مردوں کی جوتیاں دیکھ لیں تو پتہ چلا کہ مرد کھڑے ہوئے ہیں عورتیں بن کے کہ بغیر برقعے کی عورت کو ہم مقابلہ کریں گے۔ تو ہمارا مقابلہ کرنے کی کیا ہے؟ ہم نے تو بہت کم چیزیں مانگی ہیں اور بہت کم ملی ہیں۔ مثلا برابر کے حق، وراثت کے حق میں ابھی صرف قانون پاس ہوا ہے، سینٹ میں پاس نہیں ہوا۔ عورت کے اوپر بچے کو، 8 سال کی بچی کو وہ کرنے، شادی کرنے کا مسئلہ سندھ میں ہی نہیں ہے، گلگت میں چلے جائیے سب سے زیادہ وہاں پہ ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں گلگت اور کے علاقے میں ہیں۔ پھر آپ جہاں مرضی چلے جائیے۔ میں نے اس پہ بھی ایک نظم لکھی تھی، میں اگر ہوگی تو میں دیکھتی ہوں۔ اس کا روایت اب تک سانس لے رہی ہے۔ بابا نے بوڑھے آدمی کے ہاتھوں مجھے بیچنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بڑبڑائی، بابا تم خود کتنے زندہ رہو گے؟ پھر سانس روک کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ غصے سے بولا، پیچھے چل۔ مجھے یہ خریدنے والے کے گھر میں پہلے ہی 3 بیٹھی سلگ رہی تھیں۔ اپنے اپنے حجروں میں جاؤ، یہ کہتے ہوئے مجھے اندھیری کوٹری میں دھکیلتے ہوئے بولا، شہر سے دوائی لایا ہوں، وہ کھا لوں پھر تیری چیخیں نکلواتا ہوں۔ یہ سن کر تینوں اپنے حجروں سے ہنستی ہوئی نکلی، سامنے آ کر کہتی ہیں، ہم سب کے ساتھ بھی ایک رات کی دیوالی ہوئی تھی۔ شہری دوائیاں بھی 2 نمبر نکلتی ہیں، یہ بندہ بھی تو 10 نمبری ہے۔ اور میں سوچنے لگی، اور میرا باپ کیا ہو گیا؟ سناٹا آ گیا۔ باپ پر پہنچ گئی ہیں آپ سیدھا۔ جی اشرا پر نظمیں تو ہم آپ سے اور بھی سنیں گے، اور غزلوں کی بھی فرمائش ہوگی۔ آپ کی اجازت ہو اور جان کی امان پاؤں تو کچھ اور سوال بھی آپ سے میں کر لوں؟ میں تو آپ کی جان کو دونوں کی چڑیوں کی طرح آزاد کیا ہوا ہے۔ ڈانٹ رہی ہیں جو مجھے، کہہ مرضی رہی ہیں سوال تم کریں، بولو تم بولو۔ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سوال کریں۔ جی جی، ابھی ہمارے پاس میں وقت حاضر ہے ہوں۔ خوش قسمتی سے، اور ہم سب مدعو کریں گے، سوال بھی لیں گے۔ کشوراپا، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ بظاہر ہمارا آج کا ادیب جو ہے وہ بڑی ایک گہما گہمی والی زندگی گزار رہا ہے، بہت مداح ہوتے ہیں، آس پاس کافی مصروفیت بھی ہے، لیکن یہ جو ہم فرد کی تنہائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں شاید ادیب کچھ زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ اس کا حوالہ اس وقت زیادہ سامنے آیا جب ابھی چند سال پہلے آصف ہمیں چھوڑ گئے، تو یہ بات بہت کہی گئی کہ وہ بہت اکیلے تھے، بہت تنہا تھے، اور جب کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑی ایک گہما گہمی والی زندگی گزار رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس تعلق سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ بتائیے کہ آپ کیسا دیکھتی ہیں اس کو، اور آپ کی زندگی کتنی مصروف اور کتنی تنہا ہے؟ نہیں، بہت معصوم سوال کیا ہے آپ نے۔ بہت لوگوں کے درمیان رہنے والا بھی تنہا ہوتا ہے، اور تنہا رہنے والا بھی اپنی انجمن خود بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی بات، تنہائی کوئی ایک صیغہ نہیں ہے۔ تنہائی ذہنی مجبوری، معذوری اور بیماری کا نام ہے۔ تنہا صوفیہ کے بارے میں تو آپ بات کرتے ہیں کہ وہ تنہا رہتے تھے تو یہ وہی آتی تھی، یہ وہاں ہوتا تھا، اور صوفیہ نے یہ کیا اور اتنے سال تپسیا کی اور سب کچھ کیا۔
शायर अदीब भी तो तपस्या करता है, और फिर तपस्या कौन नहीं करता? क्या वो औरत नहीं करती जो ज़मीन के ऊपर पोछा रोज़ तुम्हारे घर में आके मारती है, और मैं कहती हूँ कि यहाँ दाग रह गया, ज़रा ध्यान से मारा करो, और वो आदमी नहीं जो टोकरी उठाता है और दोपहर को शाम को वो कहता था मैं प्याज से रोटी खा लूँगा, और अब उसको प्याज 450 रुपये की सेर मिल रही है, उसके पास प्याज खाने के लिए क्या है? तो तन्हाई जो है वो एक सीगा है, एक तसव्वुर है, एक ख़याल है कि हम तन्हा होना चाहते हैं या तन्हा होते हैं या पैदा ही तन्हा होते हैं, और हमारे अंदर कोई दुनिया आबाद नहीं है, हमारे अंदर बहुत बड़ी दुनियाएं आबाद हैं। हम उससे कभी उड़ के देखते हैं माजी को, जहाँ हमारा बचपन था, जहाँ हमें कोई टोकता नहीं था। फिर हम उस जवानी को मोड़ के देखते हैं जहाँ हर वक्त हमें कहा जाता था दुपट्टा ठीक से ओढ़ो, ओ सर पे दुपट्टा रखो, मर्दों के सामने नहीं जाना, भाइयों के साथ नहीं बैठना, अकेले नहीं बैठना। ये सब बातें हम सुनते सुनते फिर हम आए, शादियाँ की, फिर हम नौकरी में आए, मर्दों ने कहना शुरू किया हम इतने बेगैरत नहीं हैं कि हम औरत के मातहत काम करें। ये सब चीज़ें सुननी हमने, लिखी, देखी, पढ़ी, और उसके बावजूद एक वादा अपने आप से किया कि जब तक खुदा ने कुदरत ताकत दी है, ज़हन को और पैरों और टांगों को, उनको काम में लाते रहो। मतलब हम सारे मौलवी को ये कहते हैं नमाज़ पढ़ो, सबसे बड़ी एक्सरसाइज नमाज है। अच्छा नमाज तो पढ़ ली, तो सारा दिन जो मंजी पे बैठी रहेगी या बैठा रहेगा और टीवी देखता रहेगा, और टीवी खुला हुआ चल रहा है, तो उसके पास कहाँ से ताकत आएगी? ताकत आती है ज़हन को पुख्ता करने से और अज़्म करने से कि मैं हूँ कुछ। इस वक्त मैं यहाँ ऊपर चढ़ी हूँ, एक तरफ तुमने पकड़ा, एक तरफ तुमने पकड़ा, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैंने सारी उम्र काम किया है। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मेरे बच्चे और मेरे छोटे जो हैं वो मुझे पकड़ेंगे, तो मेरे लिए ये बड़ी बात है, मेरे लिए खुश किस्मती की बात है कि मैं इस ज़माने में ज़िंदा हूँ, और उसके बावजूद कि मैंने 48 साल तक आमरीत देखी है इस मुल्क में। मैंने अपने सामने लोगों को गोलियां खाते और साथ में कोड़े खाते, मैंने 11 साल के बच्चे को लाहौर में कोड़े मारे गए थे, मैंने किताब में लिखा है। तो इसलिए हमारे सहाफ़ी एक उनकी टांग माजूर थी और ठीक नहीं चल सकते थे, तो हमें उनके लिए जुलूस निकालना पड़ा कि उस जिस सहाफ़ी की टांगें सही नहीं हैं उसको कोड़े ना मारे जाएं, और तब जाके वो कोड़ों से बचा था। और बाकी दो जो जिन पे कोड़े लगे थे, आज भी जब बुढ़े होके मिलते हैं मैं उनके सामने झुक जाती हूँ कि मैंने इस शख्स को कोड़े खाते देखा है। तो इस मुल्क में क्या नहीं होता, सारी दुनिया में क्या नहीं होता। हम लोग सब के सब जो हैं, अब सोचें कि बहुत देख लिया हमने, बहुत से शहबाज देख लिए, बहुत से नवाज शरीफ देख लिए, बहुत से इमरान देख लिए, विचों सारे एक कोई नहीं। तो इसलिए इस हमाम से हम बाहर निकले। हम जैसे सारी दुनिया में औरतें निकल के मुजाहरा करती हैं और मर्द भी साथ में होते हैं, हम तो सबको निकल के अपने आप को ठीक करना होगा। हमें ये सारे सियासतदान नहीं चाहिए, हमें ये सारे जो हैं जागीरदार नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आपने देख लिया कि 75 बरस आपके साथ इन लोगों ने क्या किया है। आपकी इनकम पर कैपिटा 0.5 रह गई, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? बोलो भाई, तुम लोग मुझे बुलाए जा रहे हो। आपको इसीलिए कहा है। आप लोग बोले। ईश्वरा का बस एक सवाल और, फिर आपसे कुछ नज़में और हम फिर सवाल जवाब भी लेंगे। अभी आपने ज़ाती हवाले से कुछ बात कही, और अभी आपने ज़िक्र किया कि आपने इतना काम किया। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हवाला आपका है कि आपने इतने बरसों तवातुर के साथ लिखा, तवानाई के साथ लिखा, बहुत मुतहर्रिक अदीब और के तौर पे, एक शायरा के तौर पे, ये फरमाइए कि अब अगर आप इस उम्र के इस मरहले पर जब पलट कर देखती हैं तो किस बात पर बहुत फ़ख्र आपको होता है? देखो, आज जब मैं गांव में ख़ास तौर से जिन इलाक़ों में सैलाब आए थे, इंक्लूडिंग मालाकंड इलाके, वहाँ पे आज भी बच्चे जो हैं पानी से गुज़र कर स्कूल जा रहे हैं। वो उनके यहाँ से पानी निकला नहीं है,
उनके यहाँ पानी अभी भी टंडोला यार में पानी अभी तक खड़ा है और वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मेरे लिए इज़्ज़त का मकाम वही है। फिर मुझे वो भूल जाता है कि मैं पैदल घर से एक स्टॉप पे फिर दूसरे स्टॉप पे जाती थी, फिर मैं स्कूल पहुंचती थी, इसी तरह कॉलेज पहुंचती थी, और जब बस नहीं आती थी तो हम पैदल चल के पहुंचते थे। लेकिन उस वक्त कोई मेरे पीछे आके गोली मारने की कोशिश नहीं करता था। उस वक्त लोग जो थे उसमें थोड़ी सी शराफत बाकी थी। ये हद तक था कि मंटो ने आखिर कहना पड़ा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई फाशी नहीं होती। फैज साहब को कहना पड़ा स्टेज पे आके, अदालत में आके, कि कहानी फोश नहीं होती, ख्याल अगर गंदा होगा तो वो खुद उसको गंदा कर देगा। तो इसलिए कोई चीज़ जो है वो हमारी ना मज़हब माने है हमारे सिलसिले में। रोज़ मौलवी कहते हैं नमाज़ पढ़ो, और रोज़ ये होता है कि जब हज या उम्रे पे लोग जा रहे होते हैं, उसमें से 47% लोग वो होते हैं जिनके बैग से हशीश निकलती है। क्या वो उम्रा करने जा रहे हैं कि हशीश मनशियात बेचने जा रहे हैं? ये मैं नहीं कहना, इदाद शुमार बताते हैं रोज़ की, आप देखो। तो इसलिए ज़हनी तौर पर परागंदा जहन है, ज़हनी तौर पर आप ईमानदार नहीं हैं, ज़हनी तौर पर आप ईमान में यकीन नहीं रखते, तो फिर दाढ़ी का क्या फ़ायदा, फिर नमाज़ों का क्या फ़ायदा, फिर मुझे मौलाना कमर जमील बन के बातें बताने का क्या फ़ायदा, जब ये पता हो कि कमर जमील साहब ने सिर्फ इमरान खान के ज़माने में कितने करोड़ रुपए कमाए हैं और कितने ज़मीनें ली। तारिक जमील, तारिक जमील, ये दो बहुत अहम नामों को मिला दिया। ये कमर जलील कमर अच्छा जमील इस कॉम्बिनेशन। वक्त तड़प गए होंगे अपनी इलाहत में। ताहिर अशरफी भी माशाल्लाह अब आगे आ गए। जी बिल्कुल आप किशोर आपको देखकर, आपकी बात सुनकर, जो आपकी तकरीर है, जो आपका अंदाज़ है, उसमें एक बहुत जुर्रत है, बहुत जुर्रत है, एक बहुत बहादुरी है, बहुत एक दबंग अंदाज़ है बात करने का, जो बहरहाल औरतों के लिए तो बहुत ही बुरा समझा जाता है। उसके साथ साथ जब आपकी शायरी पढ़ी जाए तो उसमें एक बहुत सटल, बहुत नफीस औरत की सेक्सुअलिटी का बेहद खूबसूरत तज़किरा है कि औरत महज एक बच्चा पैदा करने की मशीन या लज्जत हासिल करने की मशीन के अलावा एक जिस्म, एक वजूद, एक इंसान है। ये दो बहुत ही नाजुक कॉम्बिनेशंस हैं। क्या चीज़ थी कि आप जहाँ से आईं या जिस घर से आईं, जैसे आप कह रही हैं कि मेरी माँ या बाकी लोगों में शायद ये जुर्रत नहीं थी, क्या इंस्पिरेशन थी, वो क्या सोच थी, वो क्या लम्हा था जब आप एक बिल्कुल अलग इंसान बनकर उभरी? मेरे पास वो बहुत से लम्हे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम 5 साल के थे हम लोग, तो कायद-ए-आज़म की तरफ से एक ख़त आया था 5 या 6 साल के बच्चे भी मुस्लिम लीग फंड्स में पैसे दे सकते हैं, और हम लोग अपनी 2-2 आने जो हमें जेब खर्च के लिए मिलते थे, हफ्ते भर के लिए 2 आने, वो हम सब ने इकट्ठे करके और मनी ऑर्डर के ज़रिए कायद-ए-आज़म को भेजे थे, और कायद-ए-आज़म की तरफ से उसका जवाब भी आया था। एक दूसरा ये कि मुस्लिम लीग की एक तहरीक चली थी हमारे यहाँ कि आप औरतें दोपहर भी आटा गूंथती हैं, सुबह भी गूंथती हैं, शाम भी गूंथती हैं। उन्हें कहा था कि जब आटा गूंथने लगो तो एक मुट्ठी आटा निकाल के एक थैले में डाल दो, और हम बच्चों की ड्यूटी ये थी कि वो आटा इकट्ठा करके दिन के दिन हम मुस्लिम लीग के दफ्तर में दे के आते ताकि उससे चंदा इकट्ठा हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात वो ये कि अम्मा भी जुलूस में जाती थी, अब्बा भी जुलूस में जाते थे, और जुलूस निकल रहे होते थे। 14 अगस्त हम लोग बुलंदशहर में थे, अब्बा मुस्लिम लीग के सदर थे, उन्होंने शाम को मिठाई बांटी और उसी शाम गिरफ़्तार कर लिए गए। वो 2 साल तक जेल में रहे। जेल की आशनाई मेरी बचपन में उस वक्त हो गई थी कि मैं अपनी पजेमियाँ संभालती हुई भाई के साथ अब्बा को रोटी देने के लिए जाती थी। ये बातें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताई। उसके बाद पाकिस्तान आना और अम्मा का अपना जेवर बेच के जहाज़ की सीटें इसलिए ख़रीदना क्योंकि पता ये चला था कि लड़कों को लड़कियों को ले जाते हैं और लड़कों को मार देते हैं और कुछ नहीं बचता और जेवर वगैरह लूट लेते हैं। तो अब्बा के दोस्त जो थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये
ट्रेन से जाएंगे नहीं जा सकती, 4 बेटियां हैं मेरी, इनको मैं जहाज़ पे लेके जाऊंगा। और अम्मा ने जेवर बेचा और फिर हम जहाज़ से लाहौर आए थे। ये सारी मंजिलें जो मैंने अपनी 7 साल की उम्र तक देख ली, क्या ये काफ़ी नहीं थी जो मुझे कुछ सिखाती? और फिर उसके साथ में एक लतीफ़ा भी शामिल कर दूं। उस ज़माने में स्कूल में वो अखबार आता था, अखबार मैं अपने पैसों से लेती थी, जेब खर्च के, क्योंकि सब ने मना किया था हम अखबार नहीं खरीद सकते। तो अखबार में छोटे छोटे मजमून लतीफ़े भेजती थी मैं। तो एक इश्तहार आया कि आता था कलमी दोस्ती का, मैंने भी लिख के भेज दिया, फॉर्म भर के भेज दिया, कलमी दोस्ती करनी है। अब कलमी दोस्ती के नाम पे पता नहीं कितने 50, 60, 70 खत आ गए। मैंने अपनी बहनों और भाइयों को कहा, देखो ये इनको माँ को का तसल्ली दी गई, ये कोई बात नहीं, इनको टैकल कर लेंगे। उसमें एक साहब बहुत बहुत परसिस्टेंट थे कि मैं मिलना चाहता हूँ। खैर भाइयों मेरे और बहनों ने कहा कि अच्छा आइए मिल लीजिए। वो आए टांगे पे और तिल्ले वाली जूती पहनी हुई और कपड़े भी वैसे ही पहने हुए। मैंने तो देखा नहीं, मुझे बताया गया। और बहुत सारे डब्बे भी और मिठाइयाँ भी, सब चीज़ें साथ। उन्होंने बताया कि भाई ये बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ती है, इससे अखबार में दे दिया था कलमी दोस्ती का, आप क्या तैयारी करके आ गए? तो उन्होंने कहा मैं इंतज़ार कर लूँगा, ये सारी मिठाइयाँ आप अपने पास रखिए। वो अब तक मेरा इंतज़ार कर रहा है, पता नहीं कहाँ है। मैं इस पे तो ये सारी बातें जो हैं ये आपको प्रोवोक करती रहती हैं, बताती रहती हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना है, नहीं करना। मैंने जब नया नया लिखना शुरू किया तो रिसालों में जितनी औरतें लिखती थी उनके आगे लिखा जाता था आंसा फलां या बेगम इजाजुद्दीन या वालदा फ़रत या ये कि इस तरह की चीज़ें। तो मैंने भी आंसा किश्वर नाहिद लिखना शुरू कर दिया। मुझे क्या पता आंसा का क्या मतलब है। जब सब हंसे और सब ने कहा कि इसका ये मतलब होता है, खैर उसमें भी नाकत ख़ता को ही कहते हैं, नौजवान बच्ची को। मैंने लिखना बंद किया। लेकिन ये कि सब चीज़ें तजर्बे भी की, बेवकूफ़ियाँ भी की और लिखना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा। और अम्मा ने मेरी कहा था कि कुरान शरीफ मानी के साथ पढ़ोगे तो गुनाह होगा, कुरान शरीफ पे बहस भी नहीं करनी और मानी के साथ नहीं पढ़ना। फिर मैंने मानी के साथ जब पढ़ा तो पहले तो अम्मा खुश हुई, फिर उन्होंने बहनों को मेरी कहा कि ये बड़ी देर से पढ़ रही है, 2 घंटे हो गए कुरान शरीफ पढ़ी जा रही है और कुछ लिखे जा रही है, तो ज़रा देखो तो सही क्या कर रही है। वो आई तो उन्होंने कहा क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं कुरान शरीफ में तमाम काफ़िए निकाल रही हूँ, बहुत खूबसूरत काफ़िए हैं कुरान शरीफ में। बस फिर मेरी शामत आ गई। तो इसलिए शामत आती रहती है। अब भी कलम के ज़रिए से बहुत से लिखने वाले हम पे क्या क्या तोहमतें नहीं लगाते और लिखते नहीं रहे और कह देते नहीं रहे, सब सर आँखों पर। क्योंकि आपके अंदर अपने कोई पुख्तगी होगी तो आप आँख में आँख डाल के बात कर सकते हैं। आँखें झुकी रखना सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है अगर ज़रूरत हो तो। जी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। किशोर आपा, चूँकि हमारे पास 15 मिनट अभी बाकी हैं और हम सवाल जवाब आखिर में चाहेंगे 15 घंटे ले कि लें। तो हम चाहते हैं कि आपसे नज़में और सुने और बल्कि गज़लें भी। अच्छा। तो आप उसके बाद सवाल। मैं चाहें तो। मैं एक बात जिसको आपने शुरू में पूछा था और उसके जवाब की तशनीगी भी रहती है, वो ये है कि उम्र के साथ साथ इंसान क्या सोचता है और क्या करता है और किस तरह से करता है। मैं एक नज़्म है जो मैंने लिखी थी जब मैं यूसुफ ज़ुलेखा पंजाबी में भी है, उर्दू में भी है, सारी ज़ुबानों में है। पढ़ने के अलावा जब कुरान शरीफ में तफसीर में पढ़ने के बाद, तफसीर पढ़ने के बाद ये आया कि जब हज़रत यूसुफ से उनकी शादी हो गई तो जो कहा गया है, मैं उसका ही कही गई बात पहले, वो दोबारा जवान हो गई थी और वो खातून जवान हो गई थी और ज़ुलेखा, तो उसके ऊपर मैंने उसकी जवानी को और अपनी जवानी को और फिर अपने बुढ़ापे को, दोनों को मरबूत करके आपको पेश करती हूँ। ज़िंदगी का कोई लम्हा ज़ुलेखा की जवानी की तरह वापस नहीं आता है। ख्वाबों के परत खोलते हुए जब खातून शर्माती थी, बैठे बैठे मुस्कुराने को जी करता था। काजल की लकीरें रोशनी की तरह हवीले बनाती थीं। होंठों पे जी चाहता है
आके रुक जाता था। घर आंगन से बाहर झांकने की ममानियत थी। मिस्रों में कभी शेरों में हाथ पकड़ा, कभी कोई शेर या शायर अच्छा लगा। चंद दिनों बाद वो आंखों के हुजूम में गायब हो जाता। तशरीकी फिर कोई मिसरा गुनगुनाने लगती। बिस्तर की सिलवटें अच्छी लगती। करवटें लेते हुए फिर कोई शख्स, फिर कोई शायर, नाम बताए बगैर आंखों में ठहर के पलक झपकते ही हवा फरोश हो जाता। ज़िंदगी ने बहुत फ्रेम बदले, मगर इसमें कोई शेर या शख्स ठहर ना सका। नातमामी के दायरे बनते गए। आँखें ने चश्मा और बालों ने सफ़ेदी पहन ली। घर आई तो फ्रेम में एक साया सा नज़र आया, जो पेंशन लेने वालों के लिए इंतज़ार में कतार के आखिर में खड़ा था। फ़ौरन उठी, बालों में कलर, आँखों में काजल लगाया। ज़ुलेखा याद आ गई। गाड़ी में बैठी तो उसी साई की आवाज़ आई, गाड़ी लॉक कर लो, कोई भी तुम्हारा बैग छीन के जा सकता है। गियर बदलते हुए आवाज़ निकली, लम्हे गुजरने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए होती है। इस उम्र में ज़ुलेखा एरिक और आयशा की दादी होती है। बच्चों को इश्क करना सिखाती है, खुद इश्क नहीं करती। तो किशोर आपा, अगर हम कुछ गज़ल की फरमाइश आपसे करें। हाँ, गज़ल पता नहीं कुछ लोगों को ये ख्याल है कि मैंने गज़ल लिखनी बंद कर दी है। मैंने गज़ल लिखनी बंद नहीं की, लेकिन मैंने गज़ल लिखने के सिलसिले में एक आध चीज़ें मैंने खुली। मसलन मैं आपको बताऊँ, मैं शेर पूरी गज़ल नहीं सुनाऊँगी, शेर सुनाऊँगी कुछ। पिछले दिनों मेरी आँखों में बड़ी ख़ारिश हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी आँखें खुश्क हो गई हैं। सुन के मैं ज़रा परेशान सी हुई कि आँखें खुश्क हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा आप परेशान ना हो, ये बुढ़ापे की बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत से जवान लोगों की भी आंखें खुश्क हो जाती हैं, लोशन डालते हैं ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो फ़िक्रा मुझे लड़ गया कि आंखें खुश्क हो गई। तो फिर मैंने लिखा, आंखें सहरा हुई तो खुला, आंखें सहरा हुई तो खुला, उम्र सारी तो जागते गुजरी। उम्रला हासिली का दरिया है, उम्रला हासिली का दरिया है, कश्ती जान संभालते गुजरी। और दिल तराजू हुआ था जिसके लिए, उसके ही ख्वाब छानते गुजरी। क्या तलाफ़ी हो इस हज़ीमत की, बेसकूनी उछालते गुजरी। क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा, फिर मैंने, अब देखे ना, अब आखिर आ रही है करके। मैं मीर पढ़ रही थी बैठी हुई, अफजान तनवीर, मीर पढ़ रही थी और लफ्ज़ आ गया ख्वाब करने मिसरे के दरमियान। तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ख्वाब करने, ख्वाब देखना तो होता था, ख्वाब करने जो है ये बहुत अनोखा है। बस उसके बाद मैंने कलम पकड़ा और इसको कहते हैं, लिखा, ख्वाब करने के दिन भी ढल गए हैं। वो तो ख्वाब ढल कर रहे थे ना, ख्वाब करने के दिन भी ढल गए हैं, हम भी तो राख में बदल गए हैं। वो जो आज़ार थे सलामत हैं, ख्वाहिश और शौक़ तो पिघल गए हैं। और रात भर जागना और चुप रहना, रात भर जागना और चुप रहना, इस कनात पे हम बहल गए। इस तरह की चीज़ें होती रही। फिर अभी दरवाज़े में एक लड़की को बंद करके उससे जायदाद के कब्ज़ा लिया गया और वो 2 साल तक बंद रही। तो मुझे उस लड़की के पास जाने का इत्तेफाक हुआ। और ऐसे के बहुत इत्तेफाक मेरी ज़िंदगी में है कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, सिर्फ वाक़यात को सोचने के लिए और इंसानों को देखने के लिए। तो उसका सर को दरवाज़े में रख के उन्होंने उसको चिकाया और उसके बाद उसको बेहोश करके अंदर कर दिया। तो फिर मैंने शेर लिखा, हमने गम की प्यास बढ़ाई, सर रखा दरवाज़े में। हमने गम की प्यास बढ़ाई, सर रखा दरवाज़े में, कोई जुनून पे रात को थामे, पहुँचे थे अंदाज़े में। और फिर शेर बताए कि एक रिवायत बहुत पुरानी गूंज रही है कानों में। एक रिवायत बहुत पुरानी गूंज रही है कानों में, वही अलाप था, वही था नगमा इस मल्हार के कूज़े में। और आखिर में आता है, छलक रहा था कदम कदम पे फिर भी तूफ़ानी ठहरा, छलक रहा था कदम कदम पे फिर भी तूफ़ानी ठहरा,
कितना प्यार भरा था हम तुमने इस मशकीज़े में। क्या क्या तो बस वाह ये वाह वाह वाह। ख़वातीन हज़रात, हाँ और जी जी, उसके बाद हम सवाल जवाब। खैर यहाँ पढ़ो। एक मुकेश्वर आपा की इजाज़त से इनकी एक कुछ जो पुराना काम है उसमें एक नज़्म मुझे बहुत पसंद है। कुछ अगर है तो मिले, ख्वाब में आए मुझे मुझसे मिलाए, मुझे सैराबी दीदार से गुलजार करे। ख्वाब वो ख्वाब के हो जिस तमाज़त का फसूं ज़ाद, ख्वाब वो ख्वाब के बन जाए शिकस्त बेदाद। कत्थई रंग घुले सुरमई शाम में ऐसे कि शफ़क़ खून की आँचों से दहक कर फैले। आते जाते हुए लोगों की तगोताज़ भी अंदेशों से अनजान लगे। जागे खदशे भी खदोखाल तमन्ना से हो मबहूत, हर एक उज़लत जहाँ शौक़ की शमशीर लिए फैल के साहिल पायाब को गारत कर दे। मरकदे हीलाए बेसूद मिटे, कुछ अगर है तो मिले, कोई गर है तो चलाए मुझे मुझसे मिलाए, मुझे सैराबी दीदार से गुलजार करे। क्या बात, बहुत खूब। जी खालिद अनम अगर कह रहा था, खालिद अनम सवाल कह रहा था कि आपके ऊपर अहमद बशीर ने 56 छुरी लिखा था। मैंने कहा मैं उस वक्त 22 साल की थी। फिर जब ये नज़्म इन्होंने बनाई उस वक्त मैं 25 साल की थी, और जब मैंने लिखा था कुछ ओढ़ने का रंग भी खिलता हुआ न था, उस वक्त मैं 20 साल की थी। तो इसलिए ये शायरी ने मंजिलें अपनी आहिस्ता आहिस्ता तय की हैं। उस पर फिर आगे बढ़ने के बाद एक साहब थे, हमारे इंतकाल हो गया, सलाउद्दीन महमूद साहब। उन्होंने कहा किशोर नाहिद के यहाँ शायरी मर रही है, गज़ल नहीं मोहब्बत मर रही है। मैंने कहा मोहब्बत वो नहीं होती जो अख्तर शिरानी सारी बन के सारी उम्र बुढ़े हो जाए लिखते ही रहते हैं, हाय मोहब्बत हाय जवानी, हाय मोहब्बत हाय जवानी। जवानी रिलेटिव होती है, तो इसलिए मेच्योरिटी जो है, और आप बार बार तन्हाई का जिक्र कर रहे थे, तन्हाई जो है वो रिलेटिव टर्म है, ईमान भी रिलेटिव टर्म है, सब चीज़ें रिलेटिव हैं। आप जिसको अप्लाई कर सकें और ज़िंदगी में बरत सकें, सिर्फ वही चीज़ रेलिवेंट होती है। जी किशोर आपा, लोग मुंतज़िर हैं आपसे हाँ सवाल जी, करने जी, के मैं लिए। तैयार हूँ। तो ये जो साहब यहाँ सबसे पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम जी, इनसे जी, अगर आइए, ये आइए। बेटा अगर इनको आप माइक पहुँचा सकें। आपा कोशिश हो कि सवाल किया जाए, कमेंट ना हो, नहीं सिर्फ बिल्कुल सवाल। जी सिंपल सा सवाल है। इरशाद। आपके बारे में जो अंग्रेज़ी में एकेडमिक चीज़ें लिखी गई हैं वो कोई काइंडर चीज़ें नहीं हैं। जैसे मैंने अभी एक सही आपके नहीं बारे सुनाई में देता ज़रा। आपके बारे में एक मजमून मैंने पढ़ा जिसका उन्वान था द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसग्रेशन बाय अ शेमलेस वुमन। अब ये कोई दिस इज़ नॉट अ काइंडर डिस्क्रिप्शन टू योर सटल एंड ब्यूटीफुल पोइट्री। या आपके बारे में लिखा गया है कि कंफ्यूज्ड वर्सिफिकेशन ऑफ अ रेडिकल फेमिनिस्ट। आपके बारे में जो लोग अंग्रेज़ी में एकेडमिक काम कर रहे हैं दे आर नॉट काइंडर टू यू। तो इस बारे में आपने कभी सोचा है, उनसे बात करने की कोशिश की है? उन सब ने मुझसे बात करने की कोशिश की है, बल्कि बात की है। साथ में ये भी कहा गया कि माइकल एंजेलो, माया एंजेलो और मेरी शायरी का तकाबुल किया गया। तनवीर अंजुम ने भी ये कहा किया है। फ़रोख़ फरुज़ाद और मेरी शायरी का तकाबुल किया गया। कई लोगों ने तकाबुल किया। तो इसलिए बात ये है कि अभी तक हम ज़हनी तौर पर मर्द तो मर्द, औरत को कभी हम शायरा और शर्माने वाली के अलावा तसव्वुर करने का सोच भी नहीं सकते। हमें अभी तक यही चाहिए कि गोटा लगी साड़ी पहने हुए आगे गए आदावर्स, तो फिर आपको अच्छा लगता है। कोई संजीदा बात की जाए और संजीदी से उस पर बात की जाए, तो उस पर सबको लगता है कि बहुत लोगों ने कहा प्रोज़ेक होती हैं, बहुत लोगों ने कहा मोहब्बत नहीं होती, बहुत लोगों ने कहा इस पर मर्दों को तो बुराई भरा कहा गया है। तो मैं ये सब चीज़ें आज से नहीं सुन रही। जब मैं 20 बरस की थी, बल्कि 14 बरस की थी, जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ, उस वक्त से मैं सुन रही हूँ। मेरे लिए नहीं है ये, उन सब औरतों के लिए है, उन सब लोगों के लिए है जो काम करती या सोचती या बात करती। या हाँ, अभी तक तो हमारे यहाँ निकाह के वक्त लोगों को कह दिया जाता है कि सिर्फ गर्दन हिला दो तो निकाह हो जाएगा। आप मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी? जी नूर आपा को पास माइक रख दीजिएगा, तो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप पूछ लीजिए, आपके बाद जी। अच्छा आपको सारी उम्र ही हो गई लिखते हुए, समझाते हुए, बताते हुए,
احساس طمانیت ہے یا احساس زیاں ہے؟ یہ زمین کچھ بانجھ ہے کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں، وہی 200-400 لوگ، آپ کی عمر سے میری عمر، میری عمر سے میرے بچے، وہی آڈینس ہے، کہہ کہہ کے تھک گئیں، سمجھا سمجھا کے تھک گئیں، لوگ نہیں بڑھ رہے، پھول نہیں کھل رہے، وہیں پر ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ احساس زیاں ہے، ہمارے ڈی این اے میں پرابلم ہے کیا؟ اور بہت ہی خوبصورت بات کی، بہت اچھی بات ہے، میں خود خوش ہوں۔ احساس محرومی یا ہزیمت نہیں ہے۔ دیکھیے وہ عورت، ایک لڑکی کوئٹہ میں، اس نے نکاح کے وقت کہا مجھے مہر نہیں چاہیے، مجھے 1,00,000 روپے کی کتابیں چاہیے مہر میں۔ وہ عورت کی مثال میرے لیے اور آپ سب کے لیے بڑی خوشگوار ہے۔ پھر ایک خاتون نے اونٹ تربت کے علاقے میں اونٹ لیا اور اس کے دونوں طرف اس نے جو کجالے ہوتے ہیں ان کجالوں میں اس نے کتابیں رکھی اور گاؤں گاؤں جانے لگی۔ تو اس عورت نے مجھے بھی ہمت دی کہ میں بھی سنجیدہ رہوں لیکن میں مایوس نہ ہوں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، جو چیزیں اب میرے 2-4 دوست، بچے دوست، مطلب میری عمر کے لوگ تو شادیوں کے نہیں سوچتے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نکاح کی رسم ہوگی، اسی میں شادی ہے، اسی میں ریسیپشن ہے، اور سسرال والے اور بیٹی والے اکٹھے کر کے وہ دے دیں گے اور اس کے بعد جو پیسے ہوں گے اس سے یا تو ہم گھر لیں گے یا ہم سیر کرنے جائیں گے، بجائے اس کے کہ 500 بندے کو کھانا کھلائیں اور 5 لاکھ جو ہے اس کا مہر ہو، بجائے ان باتوں کے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے بچے سوچنے لگے ہیں، اور جب قوم سوچنے لگتی ہے جس میں ہمارے سیاستدان شامل نہیں ہیں تو پھر کچھ کر گزرتی ہے۔ اللہ کرے ہماری قوم سوچنا شروع کر دے۔ ہماری قوم، ہماری ٹیلی ویژن پہ میراث پنا ہوتا ہے، اب صرف میراث پنا ہوتا ہے، مزاحیہ پروگرام کے نام پہ میراث پنا ہو رہا ہوتا ہے، مشاعرے کے نام کے اوپر مزاحیہ مشاعرہ ہوتا ہے جس میں عورتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو جس دن ہمارے یہاں سنجیدگی آئے گی، جس دن ہمارے یہاں سوچنا شروع کریں گے لوگ اور یہ کہیں گے کہ ہماری زندگی ہماری اکیلے کی زندگی نہیں ہے، ہماری قوم کے ساتھ ہماری زندگی ہے۔ میں آج اگر 100 روپے کما لیتی ہوں تو کل یہ 2 روپے کماتی ہے تو یہ مجھ سے بڑی ہے، کیونکہ یہ 2 روپے میں زندگی گزار لیتی ہے اور میں 100 روپے میں بھی نہیں گزارنا چاہتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم نے دکان پہ جا کے کھڑے ہو کے کہنا ہے 1 کلو یہ دے دو، آدھا کلو یہ دے دو، 2 کلو یہ دے دو، کتنے پیسے ہوئے؟ یہ ہم نہیں ہیں۔ ہم آپ وہ ہیں جو پوچھتے ہیں 1 پاؤ کتنے میں آئے گی، اور اس کے بعد ہم زندگی گزارتے ہیں اور ہم اس پہ خوش ہیں، نادم نہیں ہیں۔ اب تو ہم دال بھی نہیں کھا سکتے۔ مسور کی دال، جس کو منہ مسور کی دال کہتے تھے، وہ 450 روپے مہینہ ہو گئی ہے کلو۔ تو کیا بات کروں میں اور کیا آپ بات کریں گے؟ ہم سب روزمرہ اسی چکی میں پستے ہیں، پھر بھی لکھتے ہیں، پھر بھی بات کرتے ہیں، پھر بھی ہنستے ہیں۔ ہم شاید صرف 1 یا 2 مختصر سوال لے سکیں گے، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا۔ نور الہدیٰ، میرا سوال بہت ہی مختصر ہے۔ ایک مشکل خاتون مشکل سوال جواب نہیں کرے گی تو اور نہیں، کیا بہت ہی، ہاں ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو۔ یہ جو آپ کی شاعری پر بات ہوتی ہے، ابھی بھی ذکر ہوا کہ محبت نہیں ہے آپ کی شاعری میں، پوچھنا مجھے یہ ہے محبت کی آپ نے دل سے؟ ایسے ہی مطلب دل سے ہو گزری ہو محبت، وہ میں پوچھ رہی ہوں۔ چلیے ذرا آج پوچھ رہی ہیں کہ محبت کی آپ نے کسی سے؟ وہ تو یار مطلب اللہ میاں سے نہیں، مطلب کسی آدمی سے محبت میری کی محبت آپ کی نے؟ کہانیاں تو اخبار میں چھپی تھی، ابھی تو 56 چھری لکھا تھا مجھے احمد بشیر نے۔ اور وہ تھا کہ جب میں نے کہا تھا گورنمنٹ کالج ڈبیٹ میں کھڑے ہو کے کہ آپ لوگ لڑکیوں کو کنسولیشن پرائز دیتے ہیں، میں یہاں حصہ لینے آئی ہوں تاکہ جس میں سے جس کو جو پرائز مل سکے، چاہے پہلا ملے چاہے کنسولیشن ملے، عورتوں کو برابر کا حصہ ہوگا۔ تو لڑکوں نے مجھے شور مچا دیا تھا اسٹیج پہ، بلیک میل کیا اس نے، ججوں کو بلیک میل کیا اور اس نے اس طرح پہلا انعام لے لیا۔ ایسی باتیں سنتی رہو لیکن قائم رہو۔ یہ نہیں بتا رہی یہ جو پوچھ بتائیے رہی کہ ہیں آپ۔ محبت کی کسی سے آپ نے کہ نہیں؟ ہاں،
ये बताइए, देखिए आपका अब मोहब्बत आदमी और रिश्ते में फ़र्क तो मुझे नहीं आता देखिए है। मैं किश्वर आपा आपकी वो- मदद कर वो- दूं। वो आदमी था जो मेरे साथ पढ़ता था। देखिए सुन ले, मैं जवाब दे रही हूँ। वो आदमी था जो मेरे साथ पढ़ता था। वो आदमी था जिससे मेरे साथ शादी के लिए रजामंदी आधे घंटे में, क्योंकि अम्मा अब्बा सब नाराज़ थे कि ये लड़की लड़कों के साथ घूमती है। तो क्यों घूमती है लड़के के साथ? वहाँ हम जा रहे हैं, ज़हीर काश्मीरी बैठे हुए हैं, आगा शोरिश काश्मीरी बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला मलिक बैठे हुए हैं, फैज़ साहब बैठे हुए हैं, ईशान दानिश बैठे हुए हैं। हम उन जाके बैठ के सिर्फ ये सुनते थे कि ये लोग आपस में क्या बातें करते हैं। घर पे तू मार बन जाता था, पता नहीं कहाँ घूम के आती है, नहीं क्या होता है, इस लड़के के साथ क्यों घूमती हो? चलिए अब नाम भी बता दीजिए। आपने अभी जिक्र किया तो नाम बताने में क्या है अच्छा, क्या चीज़? मैंने मतलब बताया तो जिनसे है मोहब्बत की उनसे शादी यार, हुई। तो एक ही इससे मोहब्बत तो शुरू हुई थी अभी कि गिरफ्तार ज़माना हो गई फ़ौरन वो जो माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर दो, वो वाली शादी आधे घंटे में शादी हो गई। आधा किलो लड्डू थे, मौलवी साहब थे, ईश्वर, जिनका ये तो एक मोहब्बत थी कि नहीं ये तो उसमें? इस मुआशरे लड्डुओं की में सारी लड़कियां कहती हैं कि हमने उसी से मोहब्बत की जिससे शादी हुई। हम तो कुछ और सुनने के मुंतजिर हम थे। तो कुछ और सुनना चाह और रहे मेरा हैं। ख्याल था कि फहरिस्त होगी। देखिए वो जो हनीमून वाली मोहब्बत होती है वो मुझे भी हुई थी। और हनीमून वाली मोहब्बत ने ये किया था तो कि मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत गलत वक्त पर खत्म हो रहा है। तो मैं सुन नहीं रही। हाँ सुन ले। वो जो हनीमून वाली मोहब्बत जब ख़त्म होती है तो उसके बाद ये होता है कि मैं सुबह पूछती हूँ कि आज दफ्तर के तरफ से खाना है तो क्या तुम साथ चलोगे? खाना आपके यहाँ है, मेरे लिए तो नहीं है। आप तो इनकार ये नहीं बताती। आपने अपना नाम रखा हुआ है किश्वर नाहिद, आपने कभी नहीं बताया कि मेरा शौहर यूसुफ कामरान है। तो उधर मेरे अब्बा कहते थे तुम सैयदजादी हो किस बात की, तुम अपने साथ सैयदा किश्वर नाहिद नहीं लिखती। तो फिर मैंने कहा मैं अगर दोनों की बात मानूँ मेरा नाम होगा सैयदा किश्वर नाहिद यूसुफ कामरान भट्ट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुदा हाफिज़। ख़वातीन हज़रात, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।